Hello everyone and welcome to CBA Smart Classes. Hello and welcome to part 2 of English Vistas class 12 line by line explanation of the chapter first, the third level. Let's continue where we left. That night among my oldest first day covers, बहुत सारे first day covers हैं उसके पास, और oldest first day cover जब उसने खोल के देखा, I found one that shouldn't have been there. मुझे एक ऐसा first day cover मिला जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास वो first day cover था ही नहीं. But there it was. लेकिन वो था वहाँ पर. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. क्यों? क्योंकि किसी ने वो मेरे grandfather के घर पे गेल्सबर्ग में वो मेल किया था. अब वो कौन है? That's what the address on the envelope said. Said. That's what the address on the envelope said. And it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that. Yet I did not remember it at all. कह रहा 1894 में मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस में उसने किसी ने वो पोस्टमार्क भेजा, लेकिन मुझे वो याद नहीं है वो फर्स्ट डे कवर कि वो मैंने कब भेजा. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. मतलब वो जो स्टैम्प के बारे में बता रहा है 6 सेंट का है और डल ब्राउन कलर का है और उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी है. अब सेंट्स क्या होते हैं? जैसे पैसे होते हैं ना, रुपए और पैसे, उसी तरीके से सेंट्स होते हैं. जैसे $2.06. सेंट्स मीन्स पैसे. तो 6 सेंट्स का है और उस पर गारफील्ड की पिक्चर है. Naturally, when the envelope came to the granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. कह रहा है नेचुरली फर्स्ट डे कवर है जो उनके मेल में आया और मेल से निकाल के मैंने रख दिया और वो उसी फर्स्ट डे कवर्स की स्टैक में था, उसी फर्स्ट डे कवर की लिस्ट में था. सो जाहिर सी बात है उसको रीड नहीं किया या देखा नहीं. तो अब वो पेपर के अंदर क्या है, लेकिन वो पेपर जो है वो ब्लैंक नहीं है. देयर इज समथिंग ऑन दैट पेपर. और वो क्या है? लेट्स सी. There is a paper, Charlie, and this is addressed to the narrator, the Charlie. जिस जो अभी तक हमसे बात कर रहा है उसके पास ये लेटर है और ये उसी को एड्रेस उसके ग्रैंडडैड को भेजा गया है 1894 में. लेट्स सी क्या लिखा है. I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the delis, someone is playing the piano, and they're all out on the front porch singing Nelly home. And I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. Okay, and the note signed Sam. So basically, उसको एक लेटर मिलता है और उस लेटर में क्या लिखा है? Charlie, I got to wishing you were right. और मुझे मालूम, मैं चाहता था कि तुम सही हो, क्योंकि वो जो जगह के बारे में तुमने मुझे बताया, जो लोकेशन के बारे में मुझे बताया, I wanted to go there. and मैं चाहता था कि तुम सही हो. एंड फिर मुझे बिलीव होने लगा कि नहीं तुम सही हो. और फिर चार्ली, ये सच है, थर्ड लेवल है और मैं 2 हफ्तों से यहाँ पर हूँ और मेरे सामने वाली स्ट्रीट में लोग गाने गा रहे हैं, कोई पियानो बजा रहा है और किसी ने मुझे लेमनेड के लिए ऑफर किया है. सो फाइनली हिज फ्रेंड सैम हैज़ गॉन बैक टू 1894 एंड ही इज एंजॉइंग दैट टाइम. और उस टाइम को वो इतना एंजॉय कर रहा है और वो चार्ली को बता रहा है, लुइसा एंड चार्ली, तुम लोग कंटिन्यूसली होप मत छोड़ो, यू कीप ऑन गोइंग, यू कीप ऑन ट्राइंग एंड फाइंड दिस थर्ड लेवल एंड फ्रॉम देयर टेक अ ट्रेन एंड कम टू 1894 Galesburg, Illinois. I'm waiting here. And that letter signed by Sam. So, wow, what? It is not his escape. Actually, it is a kind of a portal. It is a kind of a portal which can take people from current situation, from the current time to 1894 in the past. So it's a kind of a time travel portal which will take people there. Right? So वो कह रहा है the note is signed by Sam and that particular letter was signed by Sam. At the stamp and coin store I go to, I found that the Sam bought $800
वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेक्ट से। और जहाँ से मैंने स्टोर से जहाँ से मैंने पैसे कन्वर्ट करे थे, मैं वहाँ गया चेक करने के लिए और मैंने फाइंड आउट किया कि भाई सैम ने भी $800 को कन्वर्ट कर रखा है पुरानी करेंसी में, $800, एंड दैट काइंड ऑफ प्रूव्ड इट कि भाई अच्छा, तो इसको पता चला और इसने भी वो पैसे कन्वर्ट कर लिए $800 को पुरानी करेंसीज में। That ought to set him up a nice little hayfield and grain business. He always said that's what he really wished he could do. And he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business. Sam was my psychiatrist. So what happened? That is the catch. So what he did, 800 को उसने पुराने सिक्कों में कन्वर्ट किया, और पुराने सिक्कों में कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ, अब भाई वो इतने रुपए उसके पर्याप्त हैं, इनफ हैं कि वो उससे कोई एक ग्रेन या हे का बिजनेस शुरू कर ले, मींस खेती बाड़ी या उन सब का काम शुरू कर ले। उस ज़माने में इतने रुपए बहुत हैं, और उसका वो काम अगर उस ज़माने में शुरू कर देगा तो वो अच्छा खासा बिजनेस सेटअप हो जाएगा। और सैम तो हमेशा मुझसे बोलता भी था कि दैट इज़ व्हाट ही वांटेड टू डू, और वो ये करना चाहता है। अब उसको समय है, वो कर सकता है, क्योंकि जो सैम अभी करता है वो 1894 में नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिजनेस 1894 में नहीं होता है। अब वो क्या है, क्योंकि सैम जो है वो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है। सो वो उसका मनोवैज्ञानिक फ्रेंड है, जो कि वो साइकियाट्रिस्ट है, वो सेम साइकियाट्रिस्ट है जिससे सैम वीना, वो सेम साइकियाट्रिस्ट है जिससे चार्ली बातें कर रहा है। और सैम उसको बिगिनिंग में बोलता है कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन एस्केप। Okay, so this is the same Sam who went back, and he could not be a psychiatrist. He could not practice this back in 1894 because वहाँ पे तो कोई इतनी टेंशन और वरीज है नहीं, फैमिली क्लोज हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हीं से लोग बातें कर लेते हैं। साइकियाट्रिस्ट को कौन पैसे देके बातें करेगा। So this is the chapter, the third level, line by line explanation. I hope you enjoyed it, and if you have any confusion, if you have any questions, if you have any requests, go ahead and comment on it. So leave a comment if you want, and we'll get back to you. Thank you.